مجھے نہیں ملا بہرحال. تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم نے کہا جی اچھا ہمیں گھر جانے دیں. یہ بات ہے صافی حضرات کے آنے سے پہلے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ ابھی نہیں جا سکتے, آپ ابھی ٹھہر. پورے 2 گھنٹے انہوں نے ہمیں وہاں روک کے رکھا بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی عذر کے, اور تقریباً 3 سے 4 جو موبائل گاڑیاں انہوں نے پولیس کی منگوائیں, اور انہوں نے ہمارا راستہ روک کے رکھا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پارٹی چھوٹی ہو یا پارٹی بڑی ہو, مشن کشمیر ٹاسک فورس اس وقت الیکشن کمیشن سے رجسٹرڈ پارٹی ہے. ہم الیکشن لڑنے جا رہے ہیں. میں پارٹی کا چیئرمین ہوں. یورپ کے اندر بیرون ممالک میں نے کشمیر کے لیے بات کی ہے, کشمیر کے لیے بولا ہوں, کشمیر کے لیے جنگ لڑی ہے, اور کشمیر کے لیے ہی ہم نے اس پارٹی کو بنایا ہے. اور ریاست کی اس پارٹی کو روکنے کے لیے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ میرا اتنا خوف ان کو کیا تھا میری پریس کانفرنس کا, کہ انہوں نے 2 موبائل گاڑیاں میرے ساتھ گھر تک بھیجی کہ آپ پریس کلب نہیں جا سکتے. اور یہ چاہتے, میں آج کیونکہ میں بڑے عرصے بعد گھر آیا ہوں, میری گھر والوں سے بھی ابھی ملاقات نہیں ہوئی, اور میں یہ بات نہیں چاہتا تھا کہ آتے ہی بجائے گھر جانے کے کوئی ایسی بات ہو جائے. ورنہ تاریخ گواہ ہے, میرا ماضی بھی گواہ ہے, کوئی بات نہیں ہے, سیاسی کارکنوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے. بلکہ آپ کے صافی بھائی ہیں شوکت تیمور صاحب, انہوں نے بھی میرے ساتھ 1 مہینہ جیل کاٹی ہوئی ہے, ہم اکٹھے رہے. تو انہیں بھی پتا ہے کہ میں ان ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کیا خوف ہے, یہ کیا بات ہے. یہ ایک سوال ہے میرے ذہن میں آج اٹھ رہا ہے کہ میں نہ کوئی باغ کے اندر, میرا تو آج پہلا قدم ہے ایک پارٹی کے اس سے, کہ اتنا آپ کو کیا خوف تھا, یہ کس کو خوف تھا مجھ سے, کہ انہوں نے کہا کہ آپ 2 لوگ بھی پریس کانفرنس نہیں کر سکتے. لاسٹ میں کامران نسیم صاحب بھی وہاں موجود تھے, اور بھی میرے خیال میں گلنواز صاحب بھی موجود تھے, اور صافی بھی موجود تھے. ہم نے ان سے پھر ریکویسٹ کی کہ ہمیں آپ 2 لوگوں کو جانے کی اجازت دے دیں. انہوں نے نہیں دی. پھر آخر میں انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ لوگ گھر جا سکتے ہیں, وہ بھی 1 گاڑی کر کے یا 2 گاڑیاں آپ کی کر کے آپ گھر جا سکتے ہیں, لیکن آپ کو پریس کانفرنس کی پریس کلب میں یا ہوٹل میں اجازت نہیں ہے. ہوٹل ڈپٹی کمشنر صاحب نے سیل کروا دیا ہے. اب مجھے, میرے لیے خیر بہت ساری باتیں جو وقت آنے پر انشاءاللہ میں آپ سے کروں گا, لیکن وقتی طور پر میں اتنا کہوں گا کہ یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے. میں اس باغ کا باشندہ ہوں, یہاں کا رہائشی ہوں, اور میں ایک پارٹی کو لیڈ کر رہا ہوں, ایک پارٹی کا چیئرمین ہوں. آزاد کشمیر بھر سے ہمارے عہدیداران آئے ہیں, مہمان آئے ہیں, جو بھی 10-20 لوگ ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے یہ بھی ریکویسٹ کی کہ یہ زیادتی ہے, آپ ہمیں گھر تو جانے دیں کم از کم. انہوں نے 2 گھنٹے ہمیں روکے رکھا. بہرحال آخر پہ انہوں نے کہا جی آپ گھر جا سکتے ہیں. وہ بھی جب میڈیا پہنچا, جب میڈیا نے کوریج دینا شروع کی, تو انہوں نے کہا جی آپ گھر جا سکتے ہیں, مگر آپ پریس کلب کی طرف نہیں جا سکتے, نہ ہی بازار جا سکتے ہیں. تو یہ بات ہے, یہ واقعہ ہے, مختصراً میں آپ کو سنا رہا ہوں. بہرحال یہ 3 سے 3.5 گھنٹے کی یہ ایک کہانی ہے. روک کے رکھا گیا, اور ڈپٹی کمشنر صاحب کا موقف مجھے ذاتی طور پر نہیں پتا, لیکن ایس ایچ او صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ان کی طرف سے ہدایات ہے. اور جب کہ اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ جائیں, پریس کانفرنس پر کوئی پابندی نہیں ہے. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ جب ہم ان سے 2 لوگوں کی اجازت مانگ رہے ہیں تو اس پر کیا ایک مسئلہ تھا. چلے وہ بھی ہو گیا. اور جب میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں اب گھر جاتا ہوں, تو وہ آپ پریس کانفرنس ہم نہیں کرتے, تو وہ مجھے گھر تک دیکھیں آگے پیچھے گاڑیاں پولیس کی لگا کے یہاں تک, وہ مطلب ایسے, یہ تو میرے خیال میں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس میں کیا ایسی بات تھی, ایسا کیا خوف تھا ان کے اندر. کہ ایسا تو انہوں نے کبھی میرے خیال میں کسی بہت بڑے جسے کہتے ہیں کہ سیاستدان کے ساتھ نہیں کیا جو انہوں نے میرے ساتھ کیا. خیر پریس کانفرنس تو ہوگی, یا ہو جائے گی, کل ہو جائے گی, پرسوں ہو جائے گی. اور میں آج آیا ہوں, انشاءاللہ یہی ہوں آپ. تو اس کا, ان ساری باتوں کا ہم سوال بھی کریں گے, جواب بھی لیں گے, اور ہم اپنی بات رکھیں گے, آپ لوگوں کے آگے بھی رکھیں گے, اور انشاءاللہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے آگے بھی رکھیں گے. اور ہم اس کو یقیناً اس پر ابھی میں ناؤ آئی ایم ریئلی بلائنڈ, آئی ڈونٹ نو کہ میں آپ کو کیا کہوں کہ کیوں ایسا ہوا. تو میں اس پر فی الحال جب تک معلومات نہیں آتی تو آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتا. سوال ہو تو سب کچھ مولانا صاحب, آپ تو ایک تو پوری عرصے کے بعد واپس آئے ہیں, اور آپ نے پولیٹیکل کارکن تو ہیں ہی, لیکن آپ نے جو یہ مشن کشمیر ٹاسک فورس کے نام سے ایک تنظیم بنائی ہے, تو کیا یہ آزاد کشمیر بھر میں
الیکشن میں حصہ لیں گے کوئی حصہ؟ جی یقیناً ہم شرقی باغ، وسطی باغ، غربی باغ سے لے کر بمبر، نیلم، جہلم تک، وادی نیلم جہلم اور مہاجرین کی جتنی بھی سیٹیں، ہم تمام سیٹوں سے اپنے امیدوار کھڑے کریں گے. اور اس سلسلے میں کچھ پارٹیز کے ساتھ جو رجسٹرڈ ہے ہماری بات بھی چل رہی ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ایسا ہم ریاستی الائنس بھی بنائیں کہ جو مل کر ہم اس الیکشن کو کنٹیسٹ کریں. میرا بھی ایک سوال آپ سے. آپ نے پارٹی کا نام رکھا ہے مشن کشمیر ٹاسک فورس، جو نام سے ایک عسکری تنظیم یا جماعت ہوتی ہے، جی لیکن آپ پولیٹیکل پروسیس میں ہیں. جی تو کیا آپ پولیٹیکل پروسیس پہ بلیو کرتے ہیں یا مسئلہ کشمیر کا حل عسکری بنیادوں پہ چاہتے ہیں؟ یقیناً کوئی بھی باشعور آدمی یہ بات سمجھتا ہے کہ جنگ کسی چیز کا حل نہیں ہوتی. اور میں اس میں ایک اور وضاحت کر دوں کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ کیا مسئلہ کشمیر کا حل جنگ ہے، تو حل آپ یہ لفظ مت استعمال کریں. حل یہ بھی تو ہو سکتا ہے ہم اس سے بھی جائیں. حل تو نہیں ہے، جنگ کر کے بھی ہم اسے لوز تو کر سکتے ہیں نا. یہ تو دیکھیں جس وہ پھر بات کی بات ہے. بالکل ریاست کا حل، ریاست جموں کشمیر کا حل مذاکرات ہے. اور یہ ایک عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر مسئلہ کشمیر کو اجاگر کرنا. اور بالخصوص میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. یورپین پارلیمنٹ میں ہماری میری سپیچ تھی، اس کے بعد وقفہ تھا چائے کا. تو آپ کو پتا ہوگا ناروے کے یہاں پہ ایکس پرائم منسٹر صاحب آئے تھے، جو مقبوضہ کشمیر بھی گئے تھے، ادھر بھی آئے تھے. یہ ہماری اس تحریک کے بعد انہوں نے وہاں سے ایک یورپین پارلیمنٹ کا انہوں نے وفد بھیجا تھا، اس بار بھی اس بار بھی، کیونکہ ہم نے 2-3 بار وہاں پہ یہ انگلینڈ سے راجہ نجابت صاحب اور بہت سارے لوگ تھے، ہم نے ان کے آگے بار بار کہتے تھے. اس ایک وہاں پہ جو ایم پی تھا، ممبر پارلیمنٹ، وہ مجھے کہنے لگا کہ مجھے آپ ایک بات سمجھائیں چائے کے دوران. مجھے کہنے لگا کہ میں نے کہا کہ آپ ہمارا ساتھ دیں. تمہاری کہتے ہیں ہم آپ کا ساتھ کس بنیاد پر دیں؟ پہلے آپ اپنا موقف دیں. ہمیں تو یہ بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں یا آپ خود کو کسی میں ضم کرنے کے لیے آپ ایک جنگ لڑ رہے ہیں. جب تک آپ خود کشمیری اپنی جنگ نہیں لڑیں گے، ہم آپ کی بات کو آگے نہیں لے جا سکتے. اس کے لیے آپ کو آگے آنا ہوگا، کشمیریوں کو بات کرنی ہوگی، کشمیریوں کو اپنا موقف رکھنا ہوگا. اگر آپ کی بات انڈیا، پاکستان، افغانستان، ایران یا کوئی اور ملک کرتا ہے، تو آپ سوچیں بھی نہ کہ کبھی آپ کو یونائٹڈ نیشن یا یورپین پارلیمنٹ سے آپ کو کسی بھی قسم کی حمایت مل سکتی ہے. اس کے لیکن ہیومن رائٹس کے اوپر ہم آپ کے لیے کوشش کریں گے. جہاں تک ہیومن رائٹس کی بات ہے اس پر ہم آواز اٹھائیں گے. اس پہ ایک رپورٹ بھی آئی تھی. ہیومن رائٹس کے لیے وہ بولتے ہیں، لیکن سیاسی مسئلہ کشمیر کا، میں 3 بار میں نے وہاں اسپیچ کی ہے، اور جن سے بھی میں ملا انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ کا مسئلہ ہمارے لیے ہیومن رائٹس کا ہو سکتا ہے. آپ کی یہ بات سنی جا سکتی ہے کہ وہاں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیفی ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، لیکن اس حوالے سے آپ اگر یہاں آ کر یہ بات کریں کہ ہم جو ہے وہ آزادی کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ کا 50% سے زیادہ لوگ تو آزادی چاہتے ہی نہیں ہیں. ہم آپ اس چیز میں آپ کو کیسے ساتھ دے سکتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے ساتھ نہیں رہنا، اس کے ساتھ رہنا ہے، اس کے ساتھ نہیں رہنا، اس کے ساتھ رہنا ہے. آپ اپنی حق متراکب کی بات کریں، اپنی رائے شماری کی بات کریں، ایون آپ اپنی خود مختاری کی بات کریں، ایون آپ کوئی بھی اپنے اس جو آپ کی جغرافیائی صورتحال ہے اس کے اندر کسی قسم کے چینج کی بات کریں، تو ہم آپ کو سن سکتے ہیں. لیکن ڈائریکٹلی اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ ہم نے وہاں جانا ہے، لیفٹ جانا ہے، رائٹ جانا ہے، تو ایسا نہیں ہوتا. اچھا سر، نوان پورہ کے مقام پہ آپ نے ابھی ہم سے ساتھی سے جو بات کی، آپ نے وہاں پہ یہ کہا کہ کسی وزیر یا MLA کے کہنے پہ آپ کو روکا جا رہا ہے. آپ کا شک کس کی طرف تھا؟ میں قبل از وقت ہوگا کہنا، لیکن مجھے پورا یقین ہے اس بات پہ. مجھے یقین بھی ہے اور میرے پاس معلومات بھی ہے. مجھے یقین بھی ہے اور میرے پاس معلومات بھی ہے. ڈپٹی کمشنر صاحب کی طرف سے کوئی ایسے احکامات نہیں تھے، اور ڈپٹی کمشنر صاحب اس بات سے بے خبر تھے. اسسٹنٹ کمشنر صاحب نے خود مجھ سے یہ بات کی ہے. اگر وہ میری بات سن بھی رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا ہے کہ پریس کانفرنس آپ کو کوئی نہیں روک سکتا، آپ کریں SOPs کے حوالے کچھ رکھ کے. انہوں نے یہ بات ضرور کہی کہ آپ اس کی وائلیشن نہیں کریں گے، اور کیونکہ اس پر بہت زیادہ سختی ہے، لیکن پریس کانفرنس آپ 1-2-4 لوگ کر سکتے ہیں. تو باقی چلیں، یہ میں اس کو نیکسٹ پہ رکھوں گا. میری کوشش ہوگی کہ میں
क्योंकि उस वक्त तक मैं ना बात को ये जो फोर्स थी वो डायरेक्टली किसी सियासतदान के साथ एंगेज थी उस वक्त, ना कि किसी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ एंगेज थी। बल्कि डीआईजी साहब से भी बात हुई, जिन में आपको बता देता हूँ, चलो डीआईजी साहब से भी बात हुई, मेरी तो नहीं हुई लेकिन हमारे किसी मोहसिन की हुई। डीआईजी साहब ने ये बात कही कि अगर आप वायलेशन नहीं कर रहे हैं और अगर आप 2 गाड़ियां ले जाना चाहते हैं तो 2 गाड़ियों पर मेरे ख्याल में कोई पाबंदी नहीं है, मैं आगे बात करता हूँ। उसके बाद फिर मुझे नहीं पता क्या हुआ, लेकिन ये बजाते खुद आप एक बड़ी खबर दे रहे हैं सर, आप पे लाइबिलिटी होगी नेक्स्ट के फोर्स किसी मिनिस्टर से डायरेक्ट डिक्टेशन ले रही हो, तो ये फिर आप पे एक लाइबिलिटी होगी कि नेक्स्ट आप उसका नाम बताएंगे कि आपके पास जो इतलात है। मुझे एक बात बताएं आप, नोटिफिकेशन मेरे पास इंतजामिया की तरफ से नोटिफिकेशन हुए हैं कोरोना के लिए, मेरे पास वो नोटिफिकेशन मौजूद है मेरे व्हाट्सएप में। उस पर कहीं पे गाड़ी से गाड़ी को कोरोना होने का नहीं लिखा हुआ। 2 दिन में रुका हूँ, मैं 9 तारीख को मेरी फ्लाइट थी, 10-11 तारीख को मैं नहीं आया सिर्फ इस वजह से कि गाड़ियों पर पाबंदी थी, ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी थी ना 2 दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसकी हमने यानी पासदारी की कि नहीं जाते हम 2 दिन। आज खुली है, आज यानी ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी है या नहीं है ये बताएं, आप बताएं। नहीं है ना, जब नहीं है तो हम भी ट्रांसपोर्ट पर आ रहे हैं ना। और गाड़ी से गाड़ी को कोरोना मैंने पहली बार सुना है कि 2 गाड़ियों को फासला रखते जाएं। दिस इज समथिंग स्टूपिड फॉर मी, ओके, बट लेट्स से कि इनका कोई रूल है कि गाड़ी का गाड़ी से फासला रखे। ये वो SOPs है जो ना मैंने पेरिस में देखी, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं देखी कि आपको गाड़ी से गाड़ी को कोरोना होगा। चले जी, गाड़ी से गाड़ी आप ये कह दें कि गाड़ी में 2 बंदे बिठाएं, मेरी समझ में आता है, लेकिन गाड़ी से गाड़ी का फासला रखें। और वहां मेहमानपुरा में इन्होंने SOPs की खिलाफ वर्जी खुद करवाई, क्योंकि हमारे कारकुन गाड़ियों से उतर कर इकट्ठे हुए, सारी दुनिया इकट्ठी हुई, 100-200 लोग एक साथ जुड़कर खड़े हुए, वो इनको नहीं नजर आ रहा था कि SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है। मैं अब इस पर कुछ बोलूंगा तो बात हुई, मैं क्योंकि यहीं का हूँ, यहीं से गया हूँ, तो मैं कोई ऐसी तकरीर नहीं करना चाहता है इन बातों पर कि SOPs क्या होते हैं। तो ये मैं नहीं समझता कि ये बहरहाल, लेकिन आप खुद ये सोचे कि गाड़ी से गाड़ी को कोरोना पहली बार सुना। चले 2 गाड़ियां थी, उधर ट्रैफिक जाम की हुई है, हमारी गाड़ियों के पीछे 200 गाड़ियां खड़ी हैं, लोग उतर के आके हमारे साथ खड़े हो रहे। मैंने 2 या 3 डब्बे मास्क के और मंगवा के लोगों को दिए। मैंने कहा यार ये हमारे मथे ना लगा रहे कहीं पे, सबको बांटे हमने कि भाई आप ये लगाएं। अच्छा भट्ट साहब, आर्टिकल 370 और 35A के खात्मे के बाद राजा फारूक अदर खान साहब की कारकर्दगी के बारे में आप क्या कहेंगे? राजा फारूक अदर साहब से मेरी मुलाकात हुई थी पेरिस में, तकरीबन 1.5 साल पहले वो गए थे, मेहमान थे मेरे। फारूक अदर साहब से हमारी एक बात तय हुई थी, क्योंकि अपने फारूक अदर साहब की मैं थोड़ी सी इसमें एक वजाहत करूँगा। फारूक अदर साहब ने मुझे कहा कि आप वहाँ हमने ऑल पार्टी जम्मू कश्मीर फोरम बनाई, में उसका जनरल सेक्रेटरी बानी भी और जनरल सेक्रेटरी था। अभी क्योंकि मिशन कश्मीर में मैंने उसकी वजह से उसका CC का मेंबर जरूर हूँ, लेकिन बानी भी हूँ, मगर मैंने ओहदा छोड़ा। फारूक अदर साहब को उस प्रोग्राम में मैं इन्वाइट किया था, तो इन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया मेरे साथ बैठ के कि आप ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाएं, मैं आपको सपोर्ट भी करूँगा, मैं आऊँगा भी, आप फ्रंट पर। हमने बात रखी थी कि आप, और वो हमने जिसमें मास्टर इश्तियाक साहब भी यहाँ से गए थे, अर्शाद भट्ट साहब और भी कुछ साथी रात गए थे। हमने इस्लामाबाद होटल में वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, और फिर पता नहीं क्या हुआ कि वो नहीं आए। खैर मैं उसके बाद उनसे मैंने रब्ता नहीं किया, सीधी बात है, मैं नाराज हो गया उनसे। मैंने कहा कि ठीक है, अगर एक प्राइम मिनिस्टर एक वादा करके डेट खुद दी उन्होंने कि इस डेट को रखे, और फिर वो ना आए, तो मेरे ख्याल में मैं नहीं समझता कि मैं उनसे फिर बात करूं। तो बाकी उनकी मैं क्या कह सकता हूं, उनका आज बयान कुछ और होता है, कल कुछ और होता है। और गैर रियासती पार्टी जितनी भी है यहाँ पे, जिनको लाड़काना, रायवन या वो क्या कहते हैं बनी गाला डील करता है, उन बेचारों का क्या है, वो जो ऊपर से बात आएगी वो कह देंगे, कुछ कह देते हैं, पीछे से डांट पड़ती है, दूसरे दिन बदल लेते हैं। वो तो उनका तो नहीं है। जरूरत वाली बात तो हम लोग करते हैं, जरूरत की बात तो हम लोग कहते हैं। हम तो कहते हैं ना, यही ये देख लेना कि 2 गाड़ियां लगा के
भाई मुझसे आपको क्या खतरा है, मैं क्या कर सकता हूँ आपके साथ? आप तो यहाँ बड़े बड़े सियासतदान हैं, हम तो जुम्मा 8 दिन हुए हम यहाँ आए, तो बोलने दें मुझे, बाहर से आया हूँ, तो 2 बातें मैं भी कर जाऊँ। अच्छा भट्ट साहब, जो आइंदा इलेक्शन में आप करें कि आपकी जो पार्टी है कश्मीर मिशन टास्क फोर्स, ये इलेक्शन में आएगी, तो अगर ये इलेक्शन में आती है तो कश्मीर के हवाले से इसका क्या मौक़िफ़ होगा? गिलगित के हवाले से भी आप अपडेट हैं कि वो सुबह बनने जा रहा है, बल्कि इस पर भी वर्क हो रहा है। कश्मीर के इस जो खिता है इस पर भी बात हो रही है। तो आपकी पार्टी कश्मीर के हवाले से क्या गैर रियासती पार्टियों की तरह का कोई मौक़िफ़ रखेगी या आपका अपना एक मौक़िफ़ होगा? क्या अवाम के लिए आप इसके साथ मेरा जुड़ा हुआ सवाल है कि आप जब इलाके पाकिस्तान की शिप पे सिग्नेचर करके वो कागजात जमा करवाएंगे तो क्या आपके मौक़िफ़ के साथ वो मैच करेगा, फिर आप जा सकेंगे इलेक्शन में? इस पे अगर आप भूल करें तो ठीक है। मैं जवाब इस पे करना चाहता हूँ। पहली बात जो इकबाल साहब आपने कही कि रियासत जम्मू कश्मीर का जो गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, तो मिशन कश्मीर ने अपना मौक़िफ़ पहले भी दिया था। हम रियासत जम्मू कश्मीर की वहदत की बात करते हैं, हम किसी कंट्रोवर्सी में नहीं जाना चाहते। रियासत जम्मू कश्मीर 84,471 मुरबा मील कश्मीरियों का है, उसमें बसने वाले कश्मीरियों ने इसका फैसला करना है। कश्मीरी उसके बुनियादी फरीक हैं, ये हमारा मौक़िफ़ है। हमारी किसी से लड़ाई नहीं है, हम कश्मीरियों को जोड़ना चाहते हैं, हम कश्मीरियों के तजाद को ख़त्म करना चाहते हैं। और आप यूँ समझें कि मिशन कश्मीर जैसे एक तबलीग करती है, हम एक तबलीग करना चाहते हैं कि सारे झगड़ों को ख़त्म करें, अपने अपने नारों को ख़त्म करें, अपने अपने दावों को छोड़ के आप लोग कश्मीर के झंडे के नीचे कश्मीर के मौक़िफ़ को, कश्मीरियों के मौक़िफ़ को लेके हम ये चाहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर हमारा बिल्कुल स्ट्रांग मौक़िफ़ है। गिलगित बल्तिस्तान रियासत जम्मू कश्मीर का हिस्सा है और रियासत जम्मू कश्मीर की एक बुनियादी इकाई है, बल्कि वो फ़ख्र है। और हम बिल्कुल रियासत जम्मू कश्मीर की तकसीम हरगिज़ नहीं होना देंगे। मतलब हम ये तो नहीं कह सकते जी कि हमको किसी से हमने जाके इस तरह की जंग करनी है, लेकिन जहां तक हम कर सके हम करेंगे। इसमें हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है कि रियासत जम्मू कश्मीर के बसने वाले लोगों का है। नहीं तो क्या तबलीग करेंगे आप? कश्मीर की वहदत की बात करेंगे, कश्मीरियों को जोड़ना चाहते हैं हम चाहते हैं कि अपने अपने नारे छोड़ के सबको राय से हमारी देखें। आपसे मैं एक बात पूछता हूँ, राजा फारूक इधर प्राइम मिनिस्टर है आज़ाद कश्मीर के, एक लंबा अरसा वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते रहे। जमात इस्लामी के लोग हैं, वो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगाते थे, बाकी पार्टीज के लोग हैं। आज एक सिर्फ मुस्लिम कॉन्फ्रेंस को छोड़ के बाकी आपने देखा होगा कि पार्टीज किसी हद तक इस बात पे आई हुई है, कंसेंसस कर दी है। तो ये तो मिशन कश्मीर का मौक़िफ़ 2018 से है। अभी 5 अगस्त 2019 के बाद सूरत हाल चेंज हुई। मिशन कश्मीर का मौक़िफ़ 2018 से यही है कि लोगों को, कश्मीरियों को रायशुमारी पे, जो आपको अक़वाम मुत्तहिदा में एक्सेप्टेड आपका डॉक्यूमेंट है, और इसी पे आपको सुना जाना है। मतलब यूरोपियन कंट्रीज में रहने वाले जो लोग हैं वो इस बात को समझते हैं कि वहाँ की जो वेस्ट की जो नेचर है वो किस तरह से आपको समझते हैं, आपको आपके हवाले से क्या सोच रहे हैं, वो कर रहे हैं। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि हम कश्मीरी को जोड़ना चाहते हैं और इसमें किसी किस्म की जो रुकावट है हम उसको खंदा बिछाने से, पहली बात यह कि हम किसी मसले का हल फौरी जवाबी कार्रवाइयाँ जो होती है या इस तरह की कोई बात होती है हम नहीं चाहते। हम उस तरह की किसी सियासत का हिस्सा भी नहीं बनना चाहते। हम ये चाहते हैं कि कश्मीरी इस वक्त मजलूम है, कश्मीरियों को बिल्कुल तोड़ के रखा गया है। हम कश्मीरी को जोड़ने की बात करते हैं और उसमें कश्मीरियों को जब जोड़ने की बात करते हैं तो फिर कश्मीर जो है उसकी शरादात की हिफाजत की भी बात करते हैं और उसमें जो भी रुकावटें होंगी उसके हवाले से हम बिल्कुल कोई दकीका फरोगदाश नहीं करेंगे, अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे उसमें। वहदत की बात तो क्या नाम है, कश्मीर साहब सवाल इनका रह गया। जी, कश्मीरी साहब का जो सवाल था आपका, आप प्लीज रिवाइज कर दें, क्योंकि इंतजामिया के साथ हमारी जरा डिस्कशन ऐसी रही जब कि आप इलेक्शन में जाते हैं तो एक शिक होती है कि हालांकि पाकिस्तान की शिक होती है देखिए जी, इलाके पाकिस्तान जो है वो उसके बाद इलेक्शन इलाके पाकिस्तान में और मदगम होने में ये फर्क है। इलाक में और मदगम होने में फर्क है, ये जरा मैं क्लियर करना चाहता हूँ। इलाके पाकिस्तान जो है वो भी कश्मीरी लीडरशिप ने किया था और पाकिस्तान बनने से पहले किया था, वो कोई बाहर के लोगों ने नहीं किया हुआ। वो शिक के हवाले से जो बात कि इलेक्शन में जाएंगे तो कैसे उसको, देखिए जी, हम ये समझते हैं कश्मीर के बुनियादी तौर पे ये जो जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं कि जो गैर रियासती जमातों के लोग हैं वो जाते हैं हमारा इलाके पाकिस्तान। हम आज भी मुजाहिद जबल के मज़ार पे हाजिरी दे के आ रहे हैं जी, चेयरमैन साहब ने वहाँ हाजिरी दी है। हमारा इशू नहीं है, हम ये चाहते हैं कि जो इलाके पाकिस्तान के हामी लोग हैं वो भी कश्मीरी हैं और वो कश्मीरियों ने किया हुआ है।
हमको ही इस बात के मालूम, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि कश्मीरी अपने अपने नारों को छोड़कर जुड़ जाएं। और हम जो ये जो इसको पहली बात तो ये है कि मिशन कश्मीर बुनियादी तौर पे कोई पॉलिटिकल पार्टी बुनियादी तौर पे नहीं, जबकि जिसकी बुनियादों में ये था कि कश्मीरियों को जोड़ना था। ये एक हुर्रियत कॉन्फ्रेंस टाइप चीज थी जिसमें उसमें अप्रोच भी किया। हम शुक्रगुजार हैं राजा फारूक हैदर साहब ने इसको अप्रिशिएट किया, हाईली अप्रिशिएट किया, और बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया। आज आते हुए मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि जमीयत उलमा इस्लाम के सेक्रेटरी जनरल उन्होंने हमें वेलकम किया, हमारे चेयरमैन को वेलकम किया। इसी तरह से वो जो दूसरी राय पार्टी के लोग थे उन्होंने किया, JKLF के लोगों ने किया, वो जो दूसरी तंजीमात के सारे लोगों ने किया, पीपल्स पार्टी के थे, नून लीग के इवन लोगों ने हमें अर्जा में वेलकम किया। हम ये चाहते हैं कि कश्मीर में बसने वाले जो लोग हैं उनको जोड़ा जाए, और इलेक्शन की सियासत में भी हमारा मकसद ये है कि जो हमारा बंदा जो होगा वो रियासत की बालादस्ती की बात करेगा। जो गैर रियासती जमात का बंदा होगा वो रियासत की बालादस्ती की बात उस तरह से नहीं करेगा। वो राजा फारूक हैदर साहब की तरह बात किसी वक्त स्ट्रांग अंदाज में करेगा, किसी वक्त वो रोना धोना शुरू कर देगा। ये प्रॉब्लम है। अच्छा कामरान भट्ट साहब ये बताएं कि इलेक्शंस होने तक अब आप यहीं पे हैं और अपना पार्लिमानी बोर्ड कब बना रहे हैं और टिकट के लिए दरखास्तें कब तक तलब करेंगे? मैं इंशाल्लाह नहीं हूँ, इलेक्शन भी लड़ूंगा और पूरे आज़ाद कश्मीर में अपनी कंपेन करेंगे, बल्कि रमज़ान के अंदर भी हम मुख्तलिफ अपने छोटे जो SOPs को मलूज़े खाता रख कर प्रोग्राम करेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे हम। और पार्लिमानी बोर्ड की जहाँ तक बात है उसमें माजिद अफसर साहब और जो दूसरे हमारे सीनियर लोग हैं, क्योंकि ये बेहतर समझते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर या ये जो मौजूदा आने वाले इलेक्शन हैं इनमें किन लोगों को टिकट किए जाए, कौन लोग डिजर्व करते हैं, कौन लोग हमारे पास आते हैं। ये तो अभी हमने शुरू किया, देखेंगे, अभी वक्त पड़ा है इंशाल्लाह, तो फिर इससे करेंगे। चेयरमैन साहब मेरा एक सवाल है, 3 आप कर लेंगे जी चेयरमैन साहब वो थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ। आपने जब बात की तो आपने कौमी आज़ादी की बात करते हुए शुरू की थी, तो इनसे जब मैंने सवाल किया तो उस सवाल को इन्होंने सही तरह से जवाब नहीं दिया। थोड़ा मैं आपको जवाब देता हूँ, क्योंकि आप जवाब इन्होंने ठीक दिया, लेकिन मसला ये है कि आप क्या सोच कर सवाल कर रहे हैं। मैं उस सोच को मद्देनजर रखकर मैं ये कह रहा हूँ कि एक तरफ आप कौमी आज़ादी की बात करें, दूसरी तरफ हालांकि पाकिस्तान की बात करें। कौम का क्या मतलब है? कौम का कौमी आज़ादी की बात। अब देखें बात क्या, हम तो ना हम अलाक की बात करते हैं ना हम खुद मुख्तार कश्मीर की बात करते हैं। हमारा मौक़िफ़ राय शुमारी है। हम ये बात कहते हैं कि शेख अब्दुल्ला या सरदार अब्दुल क़यूम खान या इब्राहिम खान साहब या अमानुल्लाह खान साहब ये सब कश्मीर के बाशिंदा रियासत जम्मू कश्मीर है। और अगर आप नेशनलिज्म या डेमोक्रेसी की बात करते हैं या सोशलिज्म की बात करते हैं तो फिर आप कैसे किसी बंदे की मर्जी को पसे पुश डालकर, ये ख्वाह वो गलत हो या सही हो, ये उसका अपना राइट है। इंसान बुनियादी तौर पर खुद मुख्तार है, वो अपनी सोच का तयन खुद करता है। और यहाँ हमने अपनी सोच का तयन एक वोट के साथ करना है। हम ये बात कहते हैं जाती तौर पर, अगर आप मुझसे सवाल करते हैं कि कामरान भट्ट आप क्या चाहते हैं, कश्मीर का मुस्तकबिल क्या होना चाहिए, मेरे अंदर की आवाज़ क्या है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब मैं एज अ चेयरमैन मिशन कश्मीर टास्क फोर्स आपको जवाब दूंगा तो उसका मतलब ये है कि मैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पार्टी हमारी का मौक़िफ़ ये है। और एक पॉइंट की बात आपने की थी, हलफनामे की आपने बात की थी, मैं इस पर एयरपोर्ट पर भी एक बात करके आया था, मैं आपकी गुज़ार करना चाहता हूँ। बड़े सगीर में जब ब्रिटेन थे ना, तो ये हिंदू और मुसलमान मिलकर जब इन्होंने तहरीक शुरू की आज़ादी की, तो उन्होंने जो कारतूस थे ना, कारतूस उसमें सूर और ये क्या कहते हैं इसको, गाय की चर्बी डाल दी कि ना मुसलमान मुंह से खुलते थे ना। ये हमारे जज्बात के, उनके जज्बात के साथ खेलने वाली बात थी। और वो तलवार और कुल्हाड़ियाँ लेकर लड़ते रहे। फिर कुछ अरसा गुजरा, उसके बाद जाके जब कोई नई टेक्नोलॉजी आई या कुछ आई या तो फिर वो आके मैदान में आए। तो इसी तरह ये जो एक कागज का टुकड़ा है ना, जिसे आप हलफनामा कहते हैं, मेरी नजर में इस कागज के टुकड़े की कोई अहमियत नहीं है, क्योंकि 2 बातें, ना उस कागज के टुकड़े पर कहीं अल्लाह या रसूल का नाम लिखा हुआ है कि मैं उसको हाज़िर नाज़िर जान के ये बात कहता हूँ, ठीक है। हल्फ है ना, हल्फ का मतलब क्या है? हल्फ का मतलब हमें बड़ी गहराई में जाना चाहिए। हल्फ का मतलब क्या है? हल्फ का मतलब वो आप अगर अमेरिका में बैठे तो आप बाइबल पे उठाएंगे, हम यहाँ बैठे तो हम अपनी किताब पर उठाएंगे। दूसरी बात ये है,
मुझे ये बात बताएं कि उस हल्फ में कहाँ ये बात लिखी हुई है कि आप नजरिए पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो आप इलेक्शन लड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं लड़ सकते। उस हल्फ में सिर्फ ये बात लिखी हुई है कि मैं नजरिया इलाके पाकिस्तान की मुखालफत नहीं करूंगा। तो हम जब राय शुमारी की बात करते हैं तो हम किसी नजरिए की मुखालफत नहीं, जो कहता है कश्मीर बनेगा इंडिया, हम उसकी भी सपोर्ट करते हैं कि ठीक है भाई, आप अगर कश्मीर बनेगा इंडिया बनाना चाहते हैं, आप कश्मीरी शेख अब्दुल्ला नहीं है, कल का फारूक अब्दुल्ला, कल का फारूक अब्दुल्ला और आज का फारूक अब्दुल्ला, आज वो हुर्रियत का उसके लिए उनके साथ खड़ा हुआ, और कल तक 50 साल 40 साल इस खानदान ने कश्मीरियों के साथ क्या किया, तो आज वो आके तो इधर खड़ा हो गया, इस तरफ इस सफ पे आकर खड़ा हो गया क्योंकि वो कश्मीरी था। मुझे बात बताएं कि अमानुल्लाह खान साहब के जनाजे को सरदार अतीक साहब ने कांधा नहीं दिया, प्रैक्टिकली कांधा नहीं दिया जाके, और मैं बहुत सारे नेशनलिस्ट बता सकता हूँ जो वहाँ नहीं गए, तो क्योंकि हम कश्मीरी हैं, हम हमारी बुनियाद एक है। और मैं ये समझता हूँ कि वक्त आ जाए इन पर से आप इदारों का, गैर रियासती जमातों का और गैर रियासती ताकतों का, इन पर से आप हाथ उठा दे। मैं समझता हूँ सरदार अतीक खान साहब सबसे पहले वो खुद मुख्तार को वोट देंगे, मेरा ईमान का हिस्सा है, मैं आपको सच्ची बात कहता हूँ। हम मुफाद की खातिर करते हैं, हमें इक़्तिदार चाहिए, कभी इस नगर कभी उस नगर कभी दर बदर। आप मुझे बताएं पाकिस्तानी पार्टीज का नाम लेना नहीं, मैं समझता हूँ कि मैंने ज़िंदगी के 30-35 साल शौकत महमूद साहब के साथ ज़ाया किए। मुझे बहुत अफसोस है, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मैंने अपने मुल्क के साथ, मैं ये कह सकता हूँ कि नाइंसाफ़ी की है। आज अगर मैं सही जगह पर आकर खड़ा हुआ हूँ तो उसका नतीजा आपने देख लिया है। ये पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो आप किसी के घर आके कर रहे हैं मेरे ख्याल में। तो बहरहाल अच्छा, आखिरी सवाल ये आखिरी सवाल, 3 साल में आपने पार्टी इतनी मुनज़्ज़म कर ली कि हज़ारों नौजवान आज़ाद कश्मीर में आज आपके साथ मौजूद हैं। ऐसा क्या लॉलीपॉप दिया इन नौजवानों को, जिस तरह इमरान खान ने कोई नौकरी के ख्वाब दिखाए या आपने कोई पैसे का झांसा दिया, क्या ऐसा आपके पास विजन था कि इतने बड़ी तादाद में नौजवान आपके साथ शामिल हुए? पैसे की झांसे की कोई बात नहीं है, हाथ ये है कि मुझे देते, ठीक है, मुझे देते। हमारे भाई यहाँ बैठे हुए, अभी मैं अगर ग्रुप में ये कह दूँ कि मुझे कॉन्फ्रेंस करनी है, मुझे 8 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, 10 लाख चाहिए, कल तक मुझे मिल जाएगा। अपने देते हैं, हमारे अपने मिशन कश्मीर टास्क फोर्स के जो ओवरसीज में भाई बैठे हुए, अपने खून, हमने सिर्फ इतना किया कि उनका जो शऊर है उसको हमने मजीद रोशन किया है, उन तक पहुंचे, रसाई हासिल की है कि जो प्रदेश में होते ना उन्हें आज़ादी का पता होता है। मैंने जब मैं सीनियर वाइस चेयरमैन था यूरोप में एक पार्टी का, थोड़ी बड़ी बात नहीं होती है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, तो पाकिस्तान बिलावल भुट्टो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सीनियर वाइस चेयरमैन कश्मीर कमेटी मैंने छोड़ दिया, इस्तीफा दिया। मैं वहाँ से आगे और जा सकता था, लेकिन हमें इस बात का एहसास हो गया कि गैर रियासती जमातों के साथ रहकर हम अपने मुफादात हासिल कर सकते हैं। शायद मैं ये कह सकता हूँ, शायद हो सकता है मेरी ज़रूरत पूरी थी, मेरी रोटी खाना पीना शायद पूरा हो गया था, तो मैंने ये डिसीजन ले लिया, हो सकता है। लेकिन ये मजबूरियाँ हैं बहुत सारी जो लोगों को रोके रखती है। और बाकी नौजवान, ये मेरे भाई, आप बाकी कहाँ से, बाकी लीपा से आए, ठीक है, लमनिया से, ये आप कहाँ से, सुदमुर्ती से आए, इसी तरह आप कहाँ से, मुजफ्फराबाद से। हमने सिर्फ ओहदेदारान बुलाए, हमने बाग में, बल्कि ये जहांगीर डार साहब और दूसरे से हमारे मिशन के भाई है, वो कह रहे थे हमें 100 गाड़ी दें, 50 दें, सॉरी 10 गाड़ी दें, 20 गाड़ी दें, 200 लाते हैं, 100 लाते हैं। मैंने अगर इस्लामाबाद में 2 दिन की कॉल पे 600 नौजवान इकट्ठे कर सकता हूँ तो ये तो मेरा अपना शहर है। पिंबर वाले, अभी भाई पिंबर वाले पहुँच गए, किधर है, ये सामने करें हमने। मैं एक बात कर रहा हूँ कि बिम्बर से, नीलम से, हर जगह से सिर्फ ओहदेदारान मुझसे मिलने आए, ये वो लोग थे जिनको रोका गया। बाकी आपको हाँ, इस बार बरसब से ये है कि आज से 5 साल पहले भी आपके साथ ऐसे होता था कि रास्ते रोके गए, लड़ाइयाँ हो गई, सियासी जलसों में रोका गया। 5 साल आप बाहर रहे, उसके बाद अब आए, तो ज़्यादा तरक्की होती है, इंसान सोसाइटी में मैच्योर होता है। तो आपने 5 साल पहले और 5 साल इसमें, आज भी आपके साथ वही हुआ है जो 10 साल पहले आपके साथ होता था, तो क्या फ़र्क देखा? मैं कहता हूँ आखिरी बात है,
अल्लाह ताला जब फैसले करते हैं ना वो सबब पैदा करते हैं। किसने मुझे इतनी कवरेज देनी थी? आप लोगों ने नहीं देनी थी। आप लोगों ने मेरी कोई खबर कल नहीं लगानी थी। आपने घर आए और घर आके आपने किया, ये अल्लाह ताला है, ये उसकी जात है। जब वो किसी को इज्जत देने पे आए ना वो खुद सबब पैदा करता है। और जब आप किसी के लिए बुरा सोचते अल्लाह ताला अच्छा सोचता है। और मैंने अभी सोशल मीडिया नहीं देखा है, मुझे यकीन है पूरे आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हज़ारों की तादाद में पोस्टें हो चुकी होगी। ये अल्लाह ताला फैसले करता है। उसने मुझे इज्जत देनी थी कि नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप जाओगे, कल आपकी 2 खबरें लगेगी नहीं लगेगी, आप मैं आपको घर भेजता हूँ, आप क्यों प्रेस क्लब में जाते हो? ये अल्लाह ताला के फैसले, बस छोड़े। देखें इंशाल्लाह अल्लाह ने हमें चुना है किसी काम के लिए तो बेहतर ही चुना है। और बस इसको थैंक यू। आप मीडिया वालों का बहुत शुक्रिया जी, मैं आपका बहुत शुक्रिया। मैं आप पहले भी शुक्रिया अदा किया है शुरू में ही, फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और साथ का जो हमारे धीर कोट में, कोआला में, हाड़ीगैल में, अर्जा में, चमन कोट में जो हमारा सारा प्रेस क्लब हमारा आपका वेट करता है, हम सबका शुक्रिया। सबका शुक्रिया। और मैं पर्सनली आप सबको इंशाल्लाह डिनर पर भी इनवाइट करूंगा, लेकिन पहले आप SHO साहब से पूछना पड़ेगा। अगर उन्होंने पहले पूछ के तो फिर इंशाल्लाह। हम प्रेस क्लब बाग की मैनेजमेंट का भी शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत इंतजार किया उन्होंने, और हम इंतजामिया की उसकी वजह से नहीं कर सके। सबका शुक्रिया। जो दूर दराज से मेहमान आए उन सबका शुक्रिया। तो बट साहब आपने जो सवाल किया था ना खाने पीने का, क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं तो ये देखना थे, ये भी क्या